कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में हमने गे-लुसाक लॉ तक डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन फोर्थ लॉ की बात हो रही है अपने पास, एवोगैड्रोस लॉ। एक्चुअली दिस लॉ आल्सो कवरिंग some basic concept of chemistry chapter. Okay, what is Avogadro's law? It states that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules or moles. Yes, equal volume of all gases contain equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules or moles. This is the statement for Avogadro's law. मैथमेटिकल फॉर्म, इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं समझता हूं मैं। वेरी सिंपल, क्या कहा इन्होंने? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस। हाइड्रोजन गैस लिया आपने, सपोज यहां पर हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, और गैस ले सकते। सपोज दिस टू डिफरेंट गैसेस, इक्वल वॉल्यूम रखा तो वॉल्यूम सेम, प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम। Equal volumes of all gases at the same pressure and temperature must contain equal number of molecules. ये भी स्टूडेंट्स आपको 1 मोल, तो एवोगैड्रोस नंबर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। दिस आल्सो कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो दैट सिंपल स्टेटमेंट, equal volumes of different gases or all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules or moles. Mathematical form, volume of given mass of gas. Let V is volume of given mass of a gas and number of moles of a gas. What is V? Volume of given mass of gas. N means number of moles of a gas. पहली बात तो हमने लिखा यहाँ पर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। बट मैंने कहा 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर इतने मॉलिक्यूल्स, 2 मोल 2 टाइम्स एवोगैड्रोस, 3 मोल 3 टाइम्स एवोगैड्रोस, मींस नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां लिख रहा हूं, बट नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of molecules, so that we can write here phi proportional to molecules means phi proportional to number of moles. Remove proportional sign, take equal sign. Phi is equal to constant k into number of moles. Shift number of moles to LHS, that is V by N equal to what? Constant. This is the mathematical form for the Avogadro's law. In a general, how it can be write? Phi1 upon N1 equal to Phi2 upon N2. For the numerical purpose, we can also use this formula. Out of the 4 values, any 3 values can be given and 1 for question. Yes? Okay. तो एवोगैड्रोस लॉ की बात की हमने स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म यहां तक। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट कंसेप्ट, व्हाट इज मोलार वॉल्यूम? व्हाट इज मोलार वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at STP, standard temperature and pressure, is called molar volume. Its value becomes 22.414 liter at STP. Volume occupied by 1 mole of ideal gas at STP. STP means standard temperature and pressure. STP called as molar volume. At STP, molar volume means volume of 1 mole of gas is 22.414 liter. What is STP condition? Standard temperature and pressure.
स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है स्टूडेंट 273.15 केल्विन विच इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस. प्रेशर इज 1 bar pressure which is equal to 10 raised to 5 Pascal. 1 bar which is equal to 10 raised to 5 Pascal. ओल्ड एसटीपी कंडीशन से यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कंसीडर करते हैं. यस, 1 बार की जगह 1 एटमॉस्फेरिक. अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन दिस 1 बार. दिस इज अबाउट एवोगाड्रोस लॉ इन डिटेल एंड आफ्टर दैट मोलर वॉल्यूम. उम्मीद है स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर है. देखिए दिख रहा है क्या आपको? ओके. Next, relation between density of a gas and molar mass of a gas. Next point, relation between density D and molar mass. Suppose it is denoted by M, molar mass of a गैस. इनका रिलेशन क्या होगा? देखिए, वी नो, इनका रिलेशन प्रूव कर रहे हैं. वी नो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस यानी वेट ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट मींस W, मोलर मास सपोज कैपिटल M. ओके, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वेट ऑफ अ गैस और मास ऑफ अ गैस. M is molar mass of a gas. But by Avogadro's law, according to Avogadro's law, we know volume is directly proportional to number of moles, but N equal to W by M, so that phi is proportional to what is N? Weight by molar mass. Exchange these two terms, molar mass और volume exchange कीजिए. Molar mass proportional to weight by volume. But we know density equal to mass or weight upon volume. Weight को ही आप mass लिख सकते हो. Mass different, molar mass different. Yes. Density D, mass W लिया हमने, volume V. W by V replaced by D, so that we get molar mass proportional to W by V means density. तो यहां से प्रूफ हुआ स्टूडेंट्स, कोई भी गैस का मोलर मास इसके डेंसिटी को होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैस. मोलर मास ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी. अंडरस्टैंड? 3 कंसेप्ट देखे हमने. एवोगाड्रोस लॉ, मोलर वॉल्यूम इन दैट एसटीपी कंडीशन, आफ्टर दैट रिलेशन बिटवीन डेंसिटी and molar mass of a gas which is directly proportional. चलता है नेक्स्ट, आइडियल गैस इक्वेशन. व्हाट इज नेक्स्ट कंसेप्ट? आइडियल गैस इक्वेशन. यहां दिख रहा है कि देखिए स्टूडेंट्स आपको. ओके, next concept related with gas is ideal gas equation. This one ideal gas equation, PV is equal to nRT. हमने इसको बहुत बार यूज भी किया है, आज इसको हम डिराइव करेंगे. PV is equal to nRT is the ideal gas equation. What is definition for ideal gas equation? मान लीजिए कोई गैस है स्टूडेंट्स, तो अपने को देखना है इस गैस का वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, 3 टर्म इन्वॉल्व्ड. यस. नंबर ऑफ मोल्स इसका फिक्स होगा, R इज द गैस कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू होगा. तो प्रेशर और टेम्परेचर का वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला मैथमेटिकल इक्वेशन मतलब होता है आइडियल गैस इक्वेशन. द मैथमेटिकल इक्वेशन which gives information about or which gives effect of pressure and temperature on volume of a gas is called as ideal gas equation. The mathematical equation which gives combined effect of pressure and temperature on volume of a gas is called ideal gas equation. Okay? Yes. What is definition? The mathematical equation
which gives combined effect of pressure and temperature on volume of a gas known as ideal gas equation. उम्मीद है स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर है. ओके, डेरिवेशन. सेकंड पॉइंट लिख दिया हमने. डेरिवेशन फॉर ideal gas equation. First point, we have to use two laws, Boyle's law and Charles' law. By Boyle's law, what is Boyle's law? Pressure inversely proportional to volume at constant temperature. अगर प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली है तो वॉल्यूम भी प्रेशर के इनवर्सली है. So that this also write like that. Volume is inversely proportional to pressure. Equation number first. Understand? Okay. Now, by Charles' law, what is Charles' law? Volume is directly proportional to absolute temperature at constant pressure. That is, volume is proportional to T. Equation number second. Now, combining equation first and second, not adding, combining. Next point, combining equation first and second. Combining कैसे किया जाता है देखिए प्रोपोर्शनल में. लेफ्ट साइड देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम कॉमन, राइट वन टाइम्स. प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन, राइट एज इट इज. आफ्टर दैट एक लाइन ड्रॉ किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे लिखना है. इन इक्वेशन फर्स्ट न्यूमरेटर इज 1, इन इक्वेशन सेकंड न्यूमरेटर इज t. डिनोमिनेटर नथिंग मींस 1. न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर लिखिए, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर. तो फी एज इट इज, प्रोपोर्शनल एज इट इज, 1 into t, हियर t, p into 1 p. ये डिफरेंटली रिलेशन बता रहे हैं, ये एक साथ दोनों लॉ को कवर कर रहा है. वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ. वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बॉयल्स लॉ. अंडरस्टैंड? ओके. आफ्टर दैट फी प्रोपोर्शनल रिप्लेस कीजिए, इक्वल से कांस्टेंट k इंटू टी बाय p. p इधर शिफ्ट कीजिए, p इंटू फी इक्वल टू k इंटू टी. ओके, यस. हियर k इज proportionality constant. K is the proportionality constant. क्या किया देखिए फिर स्टूडेंट्स इन्होंने. ठीक है, यहां तक तो आ गए. इससे पहले एक इक्वेशन डिराइव करता हूं. P इंटू V, T LHS को शिफ्ट कीजिए, इक्वल टू K. K मीन्स कांस्टेंट. P इंटू V अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट. तो इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं? P1 इंटू V1 अपॉन T1 is equal to P2 into V2 upon T2. This is called as combined gas law or combined gas law or combined gas equation. Sometimes there may be question in the board exam. Derive combined gas equation. Systematic आ गए हम यहाँ तक. कोई डाउट? ओके. इसको हमने कहा स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3. देखिए स्टूडेंट्स, एनी डाउट? तो यहां तक हमने देखा डेफिनेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, डेरिवेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन चल रहा था. हमने पहले तो सिस्टमैटिकली डिराइव किया कंबाइंड गैस इक्वेशन. अंडरस्टैंड? चलते हैं नेक्स्ट, कंटिन्यू हो रहा है. यहां तक अपना सेकंड पॉइंट कंबाइनिंग हमने दिया. थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट डिटेल हो गया. यस. आइडियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन चल रहा है. यस. इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ फोर्थ पॉइंट, इक्वेशन 1 becomes, what is equation first? Sorry, equation 3 becomes, equation 3 is P into V equal to K into T. What is K? Proportionality constant. तो जब इन्होंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k का वैल्यू फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, यस,
बहुत बार k का वैल्यू फाइंड किया, इट इज अप्रोक्सीमेटली नियर टू वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट r। तो k का वैल्यू उनको हर बार जो मिलता गया विच इज इक्वल टू और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गैस कांस्टेंट r। याद है ना r की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, या फिर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग, experimentally it is proved that value of k is approximately equal to gas constant r। तो मैं k की जगह r लिख सकता हूं, yes। what happen here, experimentally it is proved that value of k is approximately equal to value of gas constant r, therefore k replace with r। ये इक्वेशन क्या आएगा फिर, p into v equal to r into t। yes, this is ideal gas equation for 1 mole, this is for 1 mole। तो यहां पर लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई करता हूं स्टूडेंट्स, p into v equal to n into RT, this is ideal gas equation for n mole, for n moles। और यही था आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to nRT। T pressure of given mass of a gas, volume of given mass of a gas, number of moles of given mass of a gas, R gas constant, constant value, T is the absolute temperature। Understand? याद रखता अपना combined gas equation। After that, fourth point, equation 3 becomes P into V equal to KT। K is the proportionality constant। Experimentally it is proved that value of K is approximately equal to value of gas constant R, so that K equal to R। Replace in that equation K by R, so that P into V equal to R into T। This is ideal gas equation for 1 mole। If we multiply to RHS by n moles, so that this is equation for n moles ideal gas equation। Understand? Okay students, तो ideal gas equation हमने डिटेल में देख लिया। Okay? With the help of this ideal gas equation, molar mass of a gas भी हम डेरिवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वही चलते हैं, देखिए क्लियर है क्या? ओके तो स्टूडेंट्स यहां पे डेरिवेशन कंप्लीट होता है, आइडियल गैस इक्वेशन एज वेल एज कंबाइंड गैस इक्वेशन, करेक्ट। relation for molar mass of a gas from ideal gas equation। आइडियल गैस इक्वेशन से हम मोलर मास ऑफ गैस के लिए डेरिवेशन करेंगे। we know PV is equal to nRT, but what is formula for number of moles? Number of moles is the weight of a gas upon molar mass of a gas। Put this value here, PV is equal to weight upon molar mass into RT। मोलर हो गया रिलेशन, या मोलर मास का फॉर्मूला बनाना है तो आपको PV और M एक्सचेंज कीजिए, ये मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाइड, मोलर मास इक्वल टू WRT divided by P into V। This is the required mathematical expression for the calculation of molar mass of a gas from the given data। न्यूमेरिकल में सब गिवन होगा, मोलर मास क्वेश्चन मार्क, अप्लाई कीजिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला। अंडरस्टैंड? उम्मीद है स्टूडेंट्स लेक्चर 3 में यहां तक के पॉइंट क्लियर हुए होंगे। एवोगाड्रोस लॉ, मोलर वॉल्यूम, आफ्टर दैट आइडियल गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन एंड मोलर मास कैलकुलेशन। ओके चलते हैं नेक्स्ट। आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, वैल्यूज ऑफ आर इन डिफरेंट यूनिट्स। आर की जो हम वैल्यू हर वक्त लिखते हैं, अब ये कहां से, इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं आपको।
यस, देखिए स्टूडेंट्स, we know ideal gas equation PV is equal to nRT. Rearrange this equation for R. PV is equal to N into R into T. Transfer N and T to LHS. PV by NT equal to R, so that R equal to PV by NT. Any doubt? Okay. From this formula, units of R can be derived. First, R in, इससे यूनिट देखिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का यूनिट लिखा हमने लीटर, प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर, अपॉन यानी पर आएगा, एन के लिए मोल तो आएगा मोल इनवर्स, टेम्परेचर के लिए आएगा केल्विन, केल्विन इनवर्स, बिकॉज एट डिनोमिनेटर. फर्स्ट आर इन लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन. व्हेन प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज 22.4 लीटर, 22.414 होता है अप्रोक्सीमेटली, इतना लिया जाता है यहां पर. नंबर ऑफ मोल्स बिकम्स 1 एंड टेम्परेचर इज 273 केल्विन और 273.15. ये भी करेक्ट ले सकते हैं. But we put these values in this equation. Okay. Put all these values in equation first. R equal to, what is P? Pressure is 1 atmosphere, volume is 22.4 divided by number of moles 1. After that temperature 273.15. इसको जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो इसका आंसर आएगा 0.0821. यूनिट इज लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन. उम्मीद है स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर है. यस. तो गैस कांस्टेंट का ये फर्स्ट वैल्यू होता है इस यूनिट में. सेकंड आर इन, अब देखिए ये जो लीटर एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट्स, इट इज वन टाइप ऑफ वर्क. इट इज वन टाइप ऑफ वर्क. वर्क है यूनिट, SI unit is joule and CJS unit is erg, so that liter atmosphere is one type of work having two unit, SI unit joule, CJS unit erg, so that suppose R put up करें हम erg में, R in erg per mole per Kelvin. उम्मीद है स्टूडेंट्स पॉइंट कहां से आया होगा, यूनिट कहां से आया, क्लियर है. लीटर एटमॉस्फेयर मींस वर्क का, CJS यूनिट पुट अप किया erg. तो इसमें वैल्यू क्या होती है, तो इसमें वैल्यू होती है स्टूडेंट्स R इक्वल टू 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्क पर मोल पर केल्विन. अब ये कहां से आती है, पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए. जब इस यूनिट में आप गैस कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हो स्टूडेंट्स, फिर से अपने को चाहिए प्रेशर, वॉल्यूम एंड टी. प्रेशर फॉर दिस सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मर्क्यूरी बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट. लैबोरेटरी में अगर आपने कभी देखा होगा तो मर्क्यूरी बैरोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप प्रेशर मेजर कर सकते हो. उसमें मर्क्यूरी फिलअप होता है, तो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट होती है 76 सेंटीमीटर. ओके, तो मर्क्यूरी बैरोमीटर से प्रेशर निकाला जाता है और उसके लिए एक फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू H इंटू रो इंटू जी. H इज हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, वो जो मर्क्यूरी कॉलम इसका हाइट होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ऐसे हाइट लिखते हैं. रो होता है स्टूडेंट्स डेंसिटी ऑफ दैट मर्क्यूरी सब्सटेंस 13.6 ग्राम पर सीएम क्यूब. दिस इज डेंसिटी का CJS यूनिट. जी है स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, CJS यूनिट है 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. फॉर दिस unit system, pressure of the gas can be calculated from mercury barometer instrument. It is calculated by the formula pressure equal to H into rho into G. Height, H is the height of mercury column, वो जो instrument है that one height becomes 76 centimeter Hg. Rho is the density of mercury. Density of mercury, it becomes 13.6 gram per cm cube, and G is the acceleration due to gravity. After that, and number of moles 1, temperature again 273.15 Kelvin. What is remaining? Volume. Volume again 22.4 liter था, but CJS unit 1 liter equal to 1000 cm cube. So that multiplied by 1000. जब इसको 1000 से मल्टीप्लाइड करोगे तो आएगा 1 2 3 12
22,400 cm क्यूब। तो वॉल्यूम आया सीजीएस में, टेम्परेचर फिक्स, एन फिक्स, ये सब यूनिट सीजीएस में। When we put all these values in equation first and solve for it, we get value of R is 8.314 into 10 raised to 7 arc per mole per Kelvin. Understand? 22.4 लीटर है, मुझे इसको cm क्यूब में करना है बिकॉज सीजीएस यूनिट, सो दैट मल्टीप्लाइड बाय 1000, 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 22,400 cm क्यूब. Put these values in equation first and solve, we get this value of R. Understand? तो सीधे आपको वैल्यू लग करके रखना है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट चलते हैं. ये हो गए 2 यूनिट में आपके. थर्ड, R in, R की जगह मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट जूल पर मोल पर केल्विन. इसके लिए आपको बेसिक यूनिट पता चाहिए. 1 जूल इक्वल टू 10 रेज़ टू 7 अर्क. अर्क स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्क एंड जूल इज द लार्जर यूनिट. तो 10 रेज़ टू 7 अर्क की जगह आप सीधे लिख सकते हो स्टूडेंट्स जूल. तो आर का सीधा वैल्यू मिल गया आपको. थर्ड वन, आर इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. अंडरस्टैंड? यस. सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट. अब चलते हैं लास्ट यूनिट की ओर. आर इन जूल आर की जगह कैलोरी रखिए. कैलोरी पर मोल पर केल्विन. ओके, कैलोरी पुट अप किया हमने. इसके लिए आपको ये रिलेशन पता चाहिए. 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल. 1 कैलोरी होता है 4.184 जूल. कैलोरी का जूल करना है, इससे मल्टीप्लाइड कीजिए. जूल का कैलोरी करना है, इस फैक्टर से डिवाइड कीजिए. वी हैव ऑलरेडी जूल वैल्यू. इफ वी डिवाइड दिस वैल्यू बाय दिस वैल्यू, वी गेट जूल कन्वर्टेड इनटू कैलोरी. तो R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. जूल का कैलोरी करना है तो डिवाइड बाय 4.184 जूल चेंजेस टू कैलोरी पर मोल पर केल्विन. इसको सॉल्व कीजिए. इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन. 1.98 अप्रोक्सीमेटली 2 आ रहा है. सीधी सी बात है, 4 2 जा 8, अप्रोक्सीमेटली 2 को अप्रोच करेगा. दिस इज फोर्थ वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन कैलोरी पर मोल पर केल्विन. तो आपको स्टूडेंट 4 वैल्यू अच्छे से लर्न करके रखना है. फर्स्ट, लीटर एटमॉस्फेयर में 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन. नेक्स्ट, R इक्वल टू 8.314 into 10 raised to 7 अर्क पर मोल पर केल्विन. थर्ड वन, R becomes 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. एंड लास्ट वन 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन. अंडरस्टैंड? हर एक चीज डिटेल में समझे स्टूडेंट्स. ऑल फॉर्मूलेस पता चाहिए आपको, ऑल इंटर कन्वर्जन पता चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव व्यू, जेई और नीट के लिए. क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कहां भी कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ सकती है. यस. तो लेक्चर 3 में हमने स्टूडेंट्स यहां तक देखा. मिलता है नेक्स्ट कंसेप्ट.